Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. My name is Hamna and I'm a student of BSIT who's currently enrolled in PUCIT. I'm the marketing lead at DSC PUCIT and I'm your host for the day. Bootcamp 101 is brought to you with the collaboration of 12 developer student clubs from all over Pakistan. We're bringing forward an opportunity of a lifetime. These 12 unique workshops are stretched across 12 days of professional growth. Today, we are gathered here for our sixth session, that is How to Get Hired. Our guest speaker for the day is a senior executive with broad experience in all aspects of HR management. He's the Director of Human Resources at NetSol Companies. A very warm welcome to Sir Faisal Rashid Bhatti. Sir, the stage is all yours. Thank you so much. मेरे पास एक presentation है अगर मैं वो आप लोगों से कर दूं share या we can just go ahead with just I can just speak extra tempore. Sure, sir, you can share your presentation with us. असल में आज हमारे घर में कुछ very interesting के UPS diet, so half of our जो light आ रही है but जो electricity अगर आपको थोड़ा सा idea हो कि जो connections UPS पे थे, they just died. So I had to make this artificial arrangement of light in my room. So I apologize for being late because वो इसीलिए आगे पीछे करने में हो गया time. So कौन सा ये batch है? If you could answer this, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, are they computer science people, business major या क्या है इनका? थोड़ा सा background मुझे इनका आप दे दें. So basically mixed. Mostly we have computer science students with us, software engineering students with us, and information technology students with us. But since this is a non-technical workshop, though, we might have some other departments as well. Okay. So I will just start with your जो सबसे basic चीज होती है, that is your CV, जिसको आप resume भी बोलते हैं. So your what basic things your resume needs to have for a person to actually get interested in your CV, because पाकिस्तान में इस वक्त dynamics ये हैं और unfortunately बहुत अरसे से है. अगर हम कहें ये अभी से है तो अभी से नहीं है ये. जब मैंने अपनी एजुकेशन पूरी की थी, that was in 2004, तो उस वक्त भी we had a very tough time finding jobs. एक तो हमें आइडिया नहीं था कि जाना कहाँ है. डिग्री आ गई, बाहर से आ गए, पाकिस्तान आ गए. Now where do we go to? और who do we go to? कहाँ जाएं? उस वक्त तो जॉब पोर्टल्स भी इस तरह नहीं थी. So you know, your CV जब आप किसी को दें, वो that is what your one, वो एक चांस होता है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है. If you have certain things in your CV which can excite a person जिसको देख रहा है, हो सकता है 3 में से 4 में से 5 लोग उसमें से एक चीज उठाएं and they say I want to speak to this person. वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है you have to tell आप दूसरों से कितने फर्क हैं, आप क्या कर सकते हैं. It could be your hobbies, it could be any odd job जो आपने की हो, या any assignment आपने की हो, या कोई ऐसी चीज आपने की हो जो कि किसी को बताए कि you are a goal driven person, आप जिम्मेदारी लेने वाले इंसान हैं. और just words is not going to do it. So just saying कि your words कि आपने लिख दिया, that is not going to be enough. So उसके अंदर अपनी हॉबीज के अंदर करें, इसमें फोकस. if you speak कोई और लैंग्वेज आप वो बोलते हैं, वो उसमें आप लिखें. And then don't copy your resume from your friend. जो आपके फ्रेंड की लाइफ है वो आपकी लाइफ नहीं है, और आपने किसी के सीवी से इंस्पायर नहीं होना. It should have a very brief one-liner objective. 3 लाइन के 4 लाइन के इंग्लिश से इंस्पायर किसी ने नहीं होना. So just one-liner objective आपने क्या करना है. And then it should have your education. और फिर अगर आपने फाइनल ईयर में कोई प्रोजेक्ट किया, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए. और कोई आपकी हॉबीज हैं, इंटरेस्ट हैं, and that is it. Your address needs to be there.
और आपका कोई फादर नेम वहां नहीं चाहिए, आपका डोमिसाइल इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हमें आपका एनआईसी नहीं चाहिए। अगर आप लाहौर से बाहर के हैं, so prefer to have Lahore address in there because पाकिस्तान में एक माइंडसेट पाया जाता है कि लाहौर के जो लोग हैं वो शायद ज्यादा वेल एक्सपोज्ड, वेल अवेयर हैं, तो उनको आप हायर करें। सो इफ यू हैव बैकग्राउंड आपका थोड़ा सा लाहौर से बाहर का है, सो उसको सीवी पे ना आने दें। देन नेटवर्किंग इज द बेस्ट थिंग टू डू। एंड व्हेन आई से नेटवर्किंग, वो ये होती है कि अगर आपके बैच के 2 या 3 साल आगे के लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, go and meet them, go and drop them an email, contact ढूंढे उनके साथ, and trust me, the chance of your CV going through HR, if it goes through a person inside the organization, is quite high. So it's worldwide, it's a fact. And uh, you know I kind of say it with a बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि वर्ल्ड वाइड इट्स हु यू नो भी मैटर करता है। वो व्हाट यू नो वो तो मैटर करता है कि आपको आता क्या है, बट हु यू नो, वो जिंदगी में पहली जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, वो लोगों को चाहिए होती है। और इफ यू जस्ट, अगर आप कहना कि मैंने सिर्फ जॉब पोस्ट कहीं हुई और वहां सीवी डाल दिया, तो मेरी फर्स्ट जॉब थी एचआर में। तो आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम जब एक एड डालते थे तो 1100 लोग उस पर अप्लाई करते थे। अब देखिए कि 1100 लोगों में से आपने सीवी ढूंढना है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। जितने मर्जी आप एआई, मशीन लर्निंग, नए कॉन्सेप्ट्स ले आए, ट्रिकी या जो कैची पॉइंट्स उठा लें, वो टूल्स आपका जो जॉब पोर्टल्स अब नई आई हुई हैं, chances are that not everyone is going through to read your CV because एक जॉब पे बहुत लोग अप्लाई करते हैं। और आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं और वो किसी कंपनी में काम करते हैं, सो गो एंड मीट देम, आस्क देम, मुझे गाइड करें। हाउ, बिकॉज देखो, nobody is saying कि आपको हर चीज का आंसर आता होगा। what we want to see when we meet you is how honest you are, आप कितने सच्चे हैं। अगर आपको कोई चीज का आंसर नहीं आता, say I don't know, because when you try to give a smart answer as opposed to the right answer, it turns off the interviewer. वो कहते हैं चालाक आदमी है। एंड आप में से अगर मैं क्वेश्चन करूं आपसे, डू यू वांट टू एसोसिएट विद एन ऑनेस्ट पर्सन और विद अ चालाक पर्सन, तो आप क्या करेंगे? मुझे अगर कोई आंसर दे कोई, एनीवन? ऑनेस्ट ना, इट्स ऑनेस्टी। और एक्सेलेंट, बिल्कुल सबका ऑनेस्ट आ गया, थैंक यू। एंड वेयर वी फाइंड के कोई चालाकी का हमें मिल रहा है, हम क्या सब उससे 200 किलोमीटर दूर भागते हैं कि जॉब पे भी आके ये बहाने करेगा, वो हर चीज में आपको ऐसे ऐसे आंसर्स देंगे, एंड देन दे विल फील दैट उन्होंने बड़ी कोई कामयाबी कर ली। सो देयर आर मार्क्स, देयर आर फोक्स लाइक मी, मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो ऑनेस्टी में, अगर आप कह रहे हैं ना मुझे इसका आंसर नहीं आता बट आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू, वो शायद सही आंसर से भी बेहतर है। दैट इज द एटीट्यूड दैट वी वांट फ्रॉम यंग फोक्स। यू शुड नो योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। बेशक आपने उसमें कुछ भी किया हो, आपने चाहे उसमें चेयर तैयार की हो एक, बट एवरीथिंग हैज टू बी ऑन योर फिंगर टिप्स। बहुत सारे लोगों को ये शौक होता है कि जी मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में लीड था एंड आई वाज डूइंग दिस, और एक बड़ा वर्ड होता है वी वर डूइंग दिस, वी वर डूइंग दिस। तो इंटरव्यू पूछते हैं ये वी क्या है, हु इज दिस वी? तो कहते हैं जी हम 4 लोग थे। तो आपका क्या रोल था बीच में? इट इज ब्लैंक। इवन अगर आप उसमें ये कह देना कि मैं लकड़ियां उठा के लेके आया था, मैंने कील से उसमें उसको हैमर को मैंने यूज किया, मुझे चोट लगी और मैंने इतने घंटे में उसको ये यूज करके उसको फिर मैंने ड्राई होने दिया, पूरा प्रोसेस आप एक्सप्लेन करेंगे, तो दैट्स ऑल यू वांट। वी डोंट वांट आपने कितना बड़ा कोई मल्टीनेशनल कंपनी के लिए लिखा है प्रोजेक्ट बनाया, नो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट।
all we want to know is how much of detail oriented you are. डिटेल और ओरिएंटेशन क्या होती है कि किसी भी चीज के जो प्रोसेस एक होता है, ज़ाब्ता इखलाक होता है या पॉइंट्स होते हैं, फ्रॉम पॉइंट ए से आपने डी तक जाना है, तो आपने क्या बी पे क्या किया, सी पे क्या किया, डी पे क्या किया, या आपने सिर्फ ए से डी का आपको आता है रास्ता, किसी दोस्त से पूछ लिया कि हमने ये किया. सो दैट्स ऑल यू वांट टू नो. और आपकी सारी डिग्रीज के अंदर, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो बैचलर्स किसी चीज में भी हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एक होता है. So do focus on that and networking का करें उसके अंदर, job sites के ऊपर. अब तो LinkedIn is such a beautiful tool, such an amazing tool कि आपको access है from top not CEOs to HR के जो junior most लोग हैं. Just email them. और मैं आपको बात बताऊं, 10 में से 5-6 लोग पढ़ते हैं वो email. इस साल मैंने खुद there were 2 people from FAST, computer science के, and I'm amazed क्योंकि ये साल तो ऐसा था कि इस साल तो जॉब्स ही लोगों को नहीं मिल रही थी कोविड की वजह से. आप इन पर्सन नहीं जा सकते और बहुत सारी कंपनीज ने तो हायरिंग भी नहीं की. बट फास्ट के लोगों को, कंप्यूटर साइंस के लोगों को इस साल जॉब्स नहीं मिल रही थी, और उन्होंने मुझे ईमेल लिखी. एंड मैंने देखा उनके सीवी में, और मुझे था कि हमने फ्रेश तो हर कंपनी हायर कर रही होती है, somehow हमारा इंट्रोडक्शन इससे हो सका, और वो मैंने सीवी अपनी एचआर टीम को भेजा, और उन्होंने दोनों लोगों को उन्होंने हायर कर लिया बिकॉज उनको काम आता था. सो एक्सप्लोर ऑल ऑप्शंस, एंड एक्सप्लोरिंग ऑल ऑप्शंस मींस योर फ्रेंड्स जो आपसे 1-2 साल आगे हैं, जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं, गो एंड मीट देम. बेशक अभी द बेस्ट थिंग टू डू नाउ इज गो एंड मीट देम. अगर वहां अपॉर्चुनिटीज नहीं भी हैं, आस्क देम आप क्या काम कर रहे हैं अभी, हेल्प मी आउट. आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या आप, अगर वो एचआर में है, मार्केटिंग में है, फाइनेंस में है, कंप्यूटर साइंस में है, आप किस चीज पे काम कर रहे हैं, मुझे बताएं. मैं घर से बैठ के वो चीज काम करूंगा, और मुझे आप एक्स्ट्रा काम भेज दिया करें मुझे. लेट मी वर्क विद यू. उससे क्या होगा, अगर जॉब्स नहीं है, वैसे तो जॉब्स मेरे ख्याल से, एंड आई फील एंड कंपनीज लाइक अस आर आल्सो हायरिंग नाउ, अगर जॉब्स नहीं है तो आप घर पे बैठ के अपने आप को डी एजुकेट नहीं करेंगे. आप यू विल कंटिन्यू टू लर्न, एंड यू वुड नो. वो जो एक होता है ना, कॉलेज टू कॉर्पोरेट, सी टू सी एक टर्म यूज होती है बहुत सारी. कॉलेज से कॉर्पोरेट का जो सफर है वो आपका आसान हो जाएगा. आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है कॉलेज लाइफ से, मुझे कॉर्पोरेट के अंदर वहां पर आने के लिए. So these are my pointers. very इसके अंदर be yourself. CV पे कोई चीज ऐसी मत लिखें जो आपने नहीं की हुई है, because if you are being asked to call for an interview, trust me, जो आपने लिखा है आपसे पूछा जाएगा. उस पर अगर आपने लिख दिया ना कि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, so people are going to ask you आपको कहाँ आप गए, आपको क्या जगह अच्छी लगी. अगर आपने लिख दिया ना मुझे कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, so they are going to ask you कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं. बुक्स का लोग लिखते हैं कि जी मैं बुक्स पढ़ता हूं मैं. पीपल आर गोइंग टू आस्क यू कि आप, बड़ा टिपिकल आएगा क्वेश्चन आएगा कि पिछले 6 महीने में या 1 साल में आपने कौन सी ऐसी बुक पढ़ी और उसमें से कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा हो. अगर आप वहां पर आपके पास आंसर नहीं है, तो अगेन माय फर्स्ट क्वेश्चन, दैट ऑनेस्टी. इट्स जस्ट मैं आपको बताऊं कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या है, सब चीजें आप सीख जाएंगे. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स ऑनेस्टी, एंड इट्स, अगर आपने अपना काम करना है, अपने वालिद के काम में जाना है, अपनी फैमिली के बिजनेस में जाना है, या आपने कहीं काम करना है, या आपने खुद अपना काम करना है. सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. बाकी सब स्किल्स आ जाते हैं, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती, वो करने को बड़ी मुश्किल से आती है. और ऑनेस्टी, अगर आपको आदत है छोटे छोटे झूठ बोलने की, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप सफर करेंगे, आप पकड़े जाएंगे, वहां पर पकड़े जाएंगे, और पीपल फिर लोग आपको नई अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे आपको. So these are the 2 important things, and they start from your CV. So that's what it is. उसके अलावा टूल्स यूज करें, रोजी है, लिंक्डइन है. मैंने आपको कॉन्टेक्ट्स का बता दिया, लोगों से जो आपके 1-1, 2-2 साल आगे हैं, उनसे आप बात करें, मिलें उनसे, गाइडेंस लें उनसे, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं. एंड देन व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू,
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या पता है। आई हैव येट टू कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन जो हमें इंटरव्यूज में ये बता दे कि हम काम क्या करते हैं। पहले तो ये कहते हैं आप लोग कोई सॉफ्टवेयर हाउस हैं। एक तो ये वर्ड नहीं अच्छा, आप लोग, उससे आप दूर हो रहे हैं उनसे। आप लग रहे हैं कि आप अलहदा हैं और वो अलहदा हैं। सो आपका वर्ड नहीं आपने यूज करना। वी आर आस्किंग आप कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, आप कंपनी का नाम लेंगे। दिस कंपनी आईसीआई, टेट्रा पैक, बैंक ऑफ पंजाब या बैंक अल्फला ये काम करता है। और उससे पहले किसी से मिल के नोट्स पर बनाए एक पेजर ऑफ उनके कस्टमर्स कौन है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके सर्विसेज क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, ये आप एक लिख लो वहां पर। दैट विल बी सच एन अमेजिंग टूल व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। और आपसे पूछा जाएगा आपको हमारे बारे में क्या पता है या आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं। वहां पर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, आपको अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल गए। सो आपको कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए और उनको आप नहीं कहना, बिकॉज उसका मतलब है कि वो और हैं, आप यहाँ आप अपने आप को पहले ही दूर कर रहे हैं उनसे। और उसके बाद इफ यू नो द पर्सन या आपको उनका नाम पता है तो सोशल जो नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां जाके उनको एक थैंक यू ईमेल भी, और जो उनसे सीखा उनको आप एक ड्रॉप कर देंगे ईमेल। तो दीज आर द टूल्स, ये टेक्निक्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी हेल्प करती हैं और स्टैंड आउट करती हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट को एक उसके कैंडिडेट से जिसको कोई जॉब मिल जाएगी इजीली। जी, आई थिंक दैट्स माय व्यू ऑन हाउ टू get a job. If you have any questions, I would love to answer that. Yes, sir. I have a question. जी जी प्लीज। सर, हम जो रेज्यूमे बनाते हैं लाइक सॉफ्ट वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो सर अब आप ये नहीं समझते कि जो डिजिटल, जिस तरह आप एक वेबसाइट बना लें जिस उस पे आप एक हॉबीज का एक कॉलम दे दें और आप स्किल्स का दे दें, और उस तरह वेब फॉर्म में जो सीवी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेटा नहीं, वो इसलिए नहीं कि मैं अभी ना लास्ट वीक ही मैं एक अपना ना कंपैरिजन एक हमने ना सरफेस हब लिया है। किसी को आइडिया है व्हाट इज सरफेस हब? वेरी क्विक आंसर, डोंट गूगल नहीं करना। नो सर। जिसके भी आंसर सरफेस No, sir. अच्छा सरफेस हब ना इज सरफेस हब इज एन इंटरेक्टिव बोर्ड। जैसे बोर्ड नहीं होता, व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है, थैंक यू, नो मुझे पता लग गया। सो सरफेस हब इज अ व्हाइट बोर्ड, जैसे हमारा बोर्ड होते हैं जिसपे मार्कर के साथ आप लिखते हैं, राइट। सो अब देखो, अब ट्रैवलिंग तो हो नहीं रही, कस्टमर्स तो हमारी जैसी कंपनियों के पाकिस्तान में है नहीं। सो हम क्या करते हैं कि वो आपने लिखना है और उनसे कुछ काम करना है उन लोगों से। सो आप वो जो व्हाइट बोर्ड्स है ना वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए। सो आप टीम्स या मीटिंग्स या स्काइप के जरिए आप लॉग इन हो गए जैसे अभी हो गए, और हमने एक यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड कर लिया शेयर। मैं उस पर कुछ मार्क कर रहा हूँ, ABC लिख रहा हूँ, D लिख रहा हूँ। आप कहते हैं नहीं नहीं ये D नहीं होना चाहिए। ₹1,00,000 की चीज है वो। लेकिन वो कंपनीज अब उतर आ रही हैं। और जब वो मीटिंग देख रहा था, मीटिंग पे पिक्चर्स आ रही थी हमारे पास कि चाइना में थी और एक पाकिस्तान में थी। चाइना का जो था ना बोर्ड रूम, वहां पर कोई वायर नहीं थी, लैपटॉप्स के वायर नहीं थी दूर दूर तक। हमारे जो मीटिंग रूम्स थे वहां वायर्स लैंप्स की लगी हुई थी। पाकिस्तान में अभी नेटवर्क इतना तेज नहीं है, जब लोड पड़ता है तो ड्रॉप कर जाता है। सो पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी, यू डोंट वांट टू रिस्क दैट वन अपॉर्चुनिटी जो आपको लाइफ मिले कि आपका सीवी किसने खोलना है और वो खोले
और उस वक्त वेबसाइट या उसका इंटरनेट या कोई चीज वो डाउन हो जाए, यू डोंट वांट काम करना है, वो अभी टेक सेवी नहीं है, वो एप्स पे नहीं जाता, वो अभी वेबसाइट सीवी खोलने का उसको आदत नहीं है. सो डोंट रिस्क दैट. दैट्स माय वेरी फ्रेंडली ब्रदरली एडवाइस. होना चाहिए, उसकी हार्ड फॉर्म भी होनी चाहिए आपके पास. एंड इफ somebody wants it कि जी कि मेरा वो भी है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देख लें. You get my point? Excuse me, sir. I have a question, sir. किसी और को भी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Facing same. Yes, sir. सर जी आपकी जी आवाज प्लीज स्टक गो हो रही अहेड. है. Yourself in your Let CV, me and you have to see include if your हमारा hobbies, वो sir. यूपी नहीं मैं क्या ये यहाँ से मैं फेंका हूँ. टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का इशू आ रहा है मुझे थोड़ा सा. हमारा वो आज हमने हीटर ऑन किया था तो यूपीएस हमारा उड़ गया उसकी वजह से, इसकी वजह से मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको चार्ज कर लूँ. Is it okay now? Yes, sir. Sir, I have a question, sir. अब आ रही बात? Yes sir, please. Sir, just as you said in your presentation, sir, that in your CV, be yourself and include your hobbies, sir. Right, sir? Sir, let's suppose if I have the hobby of, sir, collecting daggers and knives and going to the shooting range, sir. Sir, would that put a negative impact on my CV? अब कहाँ से हैं आप? यही बात है, sir. You're No, not from sir. Lahore. I'm from Peshawar, sir. Peshawar, कहाँ से sir. हो? कहाँ से? That's what I'm saying. Yeah.
I'm being, Is it yes, okay sir, now? and I'm from Peshawar, sir. जी मैं देखो, I'm going to be honest with you. Yes, sir, please, sir. अब मैं कुछ ना मैं कुछ ऐसी बात करूंगा जिससे आपने माइंड नहीं करना, ठीक है? No, sir, I won't. इट्स देखो देखो कुछ चीजें होती हैं बड़ी पर्सनल होती हैं। आपने आपने कभी देखा कि आपने कभी बाहर, आप लोग में से बाहर कभी कोई गया है, कोई इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? हैव यू एवर बीन देयर? कोई आप में से? जो मैंने चीज बेटा वहां देखी है ना, ये लोग जो है ना बड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं, और ये आपसे ना बहस नहीं करते। ये आपको नहीं कहेंगे आप गलत है। ये अपनी पर्सनल चीजें भी आपसे और किसी और से भी नहीं करते ये लोग शेयर। और ये अपनी ये ज्यादा फोकस रखते हैं प्रोग्रेसिव होने पे और अपने व्यूज अपने तक रखने के लिए। सो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कि एक इनका एक जो पर्सनैलिटी की चीजें होती हैं। आप कभी जाके ये नहीं कहेंगे किसी को कि मैं जी झूठ बोलता हूँ, या मैं जेल में गया था, या मेरे पे कोई FIR हो गई थी। वो इंस्टेंस होते हैं लाइफ में, और वो उससे मैं आपको लिंक क्या करना चाह रहा हूं कि बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। आई वुड नॉट यूज इट, बट को एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द वर्ल्ड। आई डू नॉट लाइक मिस्टर XYZ, बट आई विल वर्क विद हिम। मैं उसके बिलीव्स, उसके ओपिनियंस, उसके व्यूज, उसके वैल्यूज पे बहस नहीं करूंगा उसके साथ। ये करते हैं बाहर के लोग। हम लोग क्या करते हैं, हम जो ये एशियंस हैं, जिसमें पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज, इंडियंस, श्रीलंकन, हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे के साथ ना पर्सनल बिलीव्स, वैल्यूज पे, और उन जहां से वो बैकग्राउंड से आए उन पे बहस करना शुरू कर देते हैं कि तुम ये, हम ये, तुम्हारा ये है, मेरा ये है। ये बाहर नहीं होता, और ये उनकी कामयाबी भी उनकी है। को एग्जिस्टेंस, इसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस और को, हम दोनों की एग्जिस्टेंस साथ साथ रहेगी। तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज जो कि थोड़ी सी भी कंट्रोवर्शियल है, वो आपको भी देखना चाहिए कि ये क्यों चाहिए मुझे। अगर आपने लाइफ में कुछ चीज अचीव करनी है, तो आपकी होनी चाहिए कि मुझे कोई ऐसी हॉबी। बहुत सारी चीजें इंसान के बारे में होती है, हर चीज आप हर एक को नहीं इन्फॉर्म करते, नहीं बताते। तो इफ योर हॉबी इज टू वो गन्स रखना, डैगर्स रखना, इस तरह की चीजें लेके आना, तो दैट कैन मेक अदर पर्सन वेरी अनकंफर्टेबल। सो वन शुड अवॉइड थिंग्स जो कि उस जो होता है ना, कॉमन एक जोन में आ रही है, जहां पर आप नो गो जोन होता है, तो वहां नहीं जाना चाहिए, उन चीजों में बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप उससे ज्यादा प्रोग्रेसिव हॉबीज, कि यू ट्राई टू लर्न न्यू लैंग्वेज। आप ये कह सकते हैं कि मैं पश्तो को लिखता हूँ, टीच करता हूँ लोगों को। मैं अपने पेशावर के कल्चर को लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। दैट्स योर हॉबी, कि पंजाब में आप हैं, लाहौर में आप हैं, और आप पेशावर की पॉजिटिविटी लोगों को एक्सप्लेन करते हैं, उनसे बहस नहीं करते। अपनी अच्छी चीजें, अपनी वैल्यूज, फैमिली सिस्टम, वो आके लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ दैट इज एक पॉजिटिव चीज है, रादर देन जो एक इमेज, एक स्टिग्मा हमने गलत हमारे पे लोगों ने किया हुआ है कि गन्स, ये पेशावर के लोग ऐसे, या वो जो नॉर्दर्न एरियाज में ये होता है, हमें उस पे नहीं जाना, हमें उनकी पॉजिटिविटी पे लेके आना है। सो यू नो, डू काइंड ऑफ गेट माय पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. It is getting, sir. I'm getting your point, sir, and it is really clearing my mind, sir. चले, थैंक यू। मुझे असल में ना आजकल बात नहीं करते, तो जब बोलते ज्यादा ड्राई हो जाता है, कि गला ड्राई हो जाता है। Thank you so much, sir. थैंक यू। Anyone else? You can ask me एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक anything. सवाल है सर। मेरा एक सवाल है सर।
Sir, I am audible? Sir, can I ask the question? Hello? Hello? Hello, sir. Hello? Sir, I have a question. Yes, please go ahead. Can I ask? सर अगर एक स्टूडेंट्स को किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो और वो सर लाहौर से भी ना हो और सर वो जिस कंपनी के लिए उसने अप्लाई करना हो उस कंपनी में उसकी तलकात भी ना नहीं हो, तो सर जब वो उस कंपनी के लिए जाता है जॉब करने के लिए सर उस कंपनी में, तो वो उनको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो सर अगर किसी के पास एक्सपीरियंस भी ना हो तो सर वो उसको कैसे जॉब मिलेगा? तो हाउ कैन ही गेट द जॉब इन दैट यार ये एक्सपीरियंस वाली जो चीज है ना, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? ठीक आ रही है? Yes, sir. यार ये एक्सपीरियंस वाली जो चीज है ना, इसको ये बहुत मैं कहूँगा ये ठीक नहीं है। इसको मिथ भी बोल सकते हैं कि ये आपको जिसने जॉब नहीं देनी वो ये बहाना कर रहा है। एक फ्रेश स्टूडेंट का एक्सपीरियंस क्या होगा यार? हमारे मतलब दिस इज जो आपसे ये क्वेश्चन करेगा, यू probably don't want to work for that kind of a person or the boss. But they are asking a fresh person जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेश के पास तो एक्सपीरियंस होगा ही नहीं ना। फ्रेश के पास कहाँ से होगा एक्सपीरियंस? व्हाट यू नीड टू डू, जो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स देने लगा हूँ, यू शुड नो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आपको वर्ड बहुत अच्छा आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, और आपको पावर बीआई। नाउ दिस इज फॉर नॉन कंप्यूटर साइंस के जो है मेजर, जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए मैं और बात करूंगा। जो नॉन कंप्यूटर साइंस है ना लोग, उनके लिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर बीआई, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं कि जो आपको अगर नहीं अभी तक सीखी आपने तो शॉर्ट कोर्सेज ले लें आप। और उसके बाद आप क्या करें कि आप यूट्यूब पे इसकी रखी हैं वीडियोस रखी हैं, और शेरा है, इस तरह की ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से अगर आप ये प्रोग्राम्स कर लें या ये शॉर्ट कोर्सेज कर लें, दे विल बी ऑफ सो मच हेल्प। और एक और काम करो आप, अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा तो स्टार्ट विद एन इंटर्नशिप। कैंची मुझे अनपेड इंटर्नशिप दे, मैंने लर्न करना। और जब आप उस इंटर्नशिप पे जाएं, टाइम पे जाएं ऑफिस, टाइम पे असाइनमेंट दें, उसके बाद आस्क फॉर मोर कि मुझे और काम दें,
ये 2-3 चीजें अगर आपने इंटर्नशिप में कर ली और आपने 2-3 महीने इंटर्नशिप कर ली और आपने शो किया आपने कि आपको काम आता है आपको और आप काम सीख रहे हैं, ट्रस्ट मी 60% चांस है कि आपको कंफर्म कर दिया जाएगा वहां पर। कहाँ कंफर्म नहीं किया जाएगा? जहां पर आप इधर उधर देखना शुरू कर देंगे कि फलां मुझे अब कंफर्म करवा दे, फलां मुझे अब फलां बॉस से मैं कह दूं, वहां पर आपका काम बात करेगा। अगर आप उस जॉब पे जाएंगे और आपको वो स्किल्स आती हैं जो टीम में ऑलरेडी लोगों को भी नहीं ना आ रही, तो ट्रस्ट मी आप सामने आ जाएंगे। आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी आनी चाहिए। अब तो ऐसे मजे मजे के टूल्स आ गए हैं जो कि वन कैन लर्न, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोगों में नहीं है, जो काम कर रहे हैं उनके पास नहीं है वो स्किल। So use this time to enhance your profile, learn new things, those new tools. और वो अनपेड इंटर्नशिप, और ये मैं आपको बिल्कुल वर्स्ट केस दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल दैट यू विल गो इन द इंडस्ट्री एंड यू विल, आपने टिप्स दिए उस पर और काम क्लियर करेंगे एंड यू विल बी एबल टू फाइंड अ जॉब। अगर नहीं मिलती, वर्स्ट कम वर्स्ट, घर बैठने से या अपने माँ बाप की डांट खाने से बेहतर है गो फॉर एन अनपेड इंटर्नशिप। जो नहीं आपको ओके जी मैं लैपटॉप भी अपना लेके आऊंगा मैं, और मैंने आपको हेल्प करनी है, मैंने काम पे मुझे बैठने दें यहाँ पर, मुझे एक चेयर दे दें, कुर्सी मेज दे दें, मैं आपका भी काम करूंगा। और वहां पर अगर आप अपनी चीजें शो करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी 50-60% चांसेस हैं कि आपको वहां पर वो सीट तैयार करके आपको कंफर्म कर लेंगे। देखेंगे आप में क्या, कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना साफ काम करता है, सच बोलता है, काम मांगता है, हंगरी फॉर वर्क है। एक हंगर होती है ना, हंगर, एक भूख लगती है, वो काम की भूख इसमें है कि नहीं है, इसकी एस्पिरेशंस क्या हैं। बस या सिर्फ जॉब चाहिए, बस जॉब लग जाए। और बस मैं जब टीच करता था, मैं जब नया नया पाकिस्तान आया तो मैं आई यूज्ड टू टीच एट एनसीबीए, मैं इंग्लिश वहाँ पर टीच करता था। तो मैंने एक बंदे से पूछा, वो स्टूडेंट से, कि आप उसने कहा जी इसलिए किसी शादी हो जाए। मैंने कहा ये तुम्हारा जो गोल है, सो यू नो इफ समबडी हैज अ वेरी शॉर्ट टर्म गोल, तो वो फिर आप जॉब फिर आप ना ही करें तो अच्छा है। But if you dream about being डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, या अपनी कंपनी खोलनी है, या अपना काम करना है, या वालिद साहब पे काम करना है, और वहां फिर इफ यू ड्रीम बिग एंड यू नो कि मुझे अभी कुछ नहीं आता, मैं भी बिल्कुल रॉ हूँ, बेसिक हूँ मैं, और मैंने सीखना है, एंड यू शुड बी हंगरी। वो जो हंगर का वर्ड है ना, हंगर, काम बस मैंने सीखना है, मैंने नया काम सीखना है, आपकी खुद ही स्पेस बन जाएगी आपकी। दीज आर नॉट जस्ट मोटिवेशनल टॉक्स कि आपके सामने बैठा हूं मैं खुद। मैंने मेरी पहली जॉब, जब मैं पाकिस्तान आया, मुझे नहीं पता था कहाँ से जाना है, तो मेरे वालिद साहब का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में उनका अकाउंट था। तो उन्होंने ब्रांच में मैनेजर को कहा कि मेरा बेटा बाइक आया है, तो यार इसका क्या करना है, इसको जॉब शॉप ढूंढ के दो। उसने कहा जी मैं इंटर्नशिप दे सकता हूँ। तो मैं मिलने गया, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए बड़े सख्त किस्म से, शायद मुझे उनके आंसर भी नहीं आ रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा मैं आपके वालिद साहब की वजह से ना आपको इंटर्नशिप आपको मैं दे देता हूँ। मैंने कहा जी कितनी मेरी वो स्टाइपेंड होगा? उसने कहा जी 3,000 रुपया होगा, लेकिन अब आप बाहर से पढ़ के 3,000 आप क्या आप लेंगे, छोड़ेंगे ये भी ना आप लेंगे। मैं अंदर से सोच रहा था दे ही देते चलो, लेकिन उन्होंने ना दिया मुझे। तो मैंने वहाँ इंटर्नशिप की। वहाँ पर विद इन अ वीक मुझे वहाँ पर ऐसे से टास्क असाइन होना शुरू हो गए जो कि एक सीनियर लोगों को होते हैं, और ट्रस्ट आना शुरू हो गया उनको मेरे पे। लेकिन उसके साथ मेरे लिए प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे बैचमेट वहां पर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहे थे, उनके पास डेस्क थे, उनको गाड़ियां मिली हुई थी वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से। वो उस वक्त एएम थे वहां पर, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, इस वक्त अपनी चेयर भी नहीं थी। मुझे इंपॉर्टेंट काम से लेके यहाँ तक कहते थे कि फोटो कॉपी भी करके लेके आओ, लेकिन अपनी ईगो पे हर्ट, मैंने अपनी ईगो को कुछ नहीं होने दिया, तो मैं न्यू कि यार मैंने काम सीखना है। मैंने, अगर मैं इतना बड़ा कोई बहुत बड़ा अमीर और बहुत बड़ी अपने आप को चीज फील करता हूँ, तो फिर मैं जाऊँ वो जाके काम करूँ। अगर मैंने सीखना तो मैं ये करूंगा। ट्रस्ट मी, इन 2-3 months दे ऑफर्ड मी जॉब। लेकिन उसके साथ ही क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आईटी का था, तो मुझे किसी ने कहा कि आप वापस सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाओ, तो मैं इंडस्ट्री में आ गया, आईटी में आ गया, और वो भी मेरी फर्स्ट जॉब थी। और उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, और उसमें सारी चीजों लेके वहां से आज तक इट ऑल वो स्टार्टेड फ्रॉम एन अनपेड इंटर्नशिप 3 महीने की,
लेकिन मैं सुबह जाता था तैयार होके सूट टाई लगा के सीखने भी जाता था वहां पर। और मेरे पास और ऑप्शन भी थी, मैं कहता मैं क्यों ऐसी जगह पे काम करूं जहां पर मेरे बैचमेट्स असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, उनको कंपनी ने गाड़ियां दी हुई हैं। कितनी बड़ी ईगो पे आपकी वो होती है, और वो शायद अंदर से हंसते होंगे कि देखो ये बाहर गया था, हम पाकिस्तान रहे और हम ये कर रहे हैं कि बाहर से होके आके भी यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है। कि कैन यू इमेजिन कि आपके जो बैचमेट्स हैं उनके आप लोगों के साथ ऐसे हो तो आप क्या फील करेंगे? अब ये कुछ तकलीफें हैं जो उठानी पड़ती हैं इंसान को लाइफ में। कैन यू आप कर सकते हैं इसको, इमेजिन इसको? यहाँ पर इतना हमारा कंपटीशन होता है कि उसके पास ये फोन है, उसके पास ये है, वो यहाँ खाना खाता है, उसके पास इतने पैसे होते हैं, बट यू हैव टू। अब माशाल्लाह माशाल्लाह व्हेन आई लुक बैक, व्हेन आई माशाल्लाह टच वुड, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, व्हेन आई लुक बैक वो लोग शायद वहीं के वहीं हैं। अब मैं बहुत आगे जा चुका हूँ इंशाल्लाह, और भी आगे आगे जाएंगे। बिकॉज काम की वैल्यू होनी चाहिए, बस हंगर, एक होता है हंग्री फॉर वर्क। You need to be hungry for work and not look at the references. Reference जिंदगी में एक काम आता है। मेरे वालिद का अकाउंट था वहां पर, उन्होंने मुझे वहां एक दफा घुसा दिया। अब आगे मैंने वहां पर काम करना है। जिंदगी में अगर आप ये कहेंगे ना कि सारी जिंदगी भाई, मामू, वालदा, बहन ये मुझे हेल्प करेंगे, तो आप ज्यादती कर रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो है ना, अभी वो ओबामा ने एक लिखी है ना, तो उसने अभी एक लिखी है, एक उसने लिखी है अभी पीछे कुछ 2 हफ्ते पहले, तो उसके बारे में काफी आर्टिकल्स आ रहे हैं और काफी कुछ आ रहा है उसके ऊपर। तो उसने कहा कि मेरे लिए इंस्पिरेशन होती थी वो जो एमएनएम का गाना था, एक लाइफ एक चांस आपको देती है। एक वो रैप का अगर आपको शौक हो तो एमएनएम एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था अमेरिका में, अभी भी है। उसका रैप था वन चांस। तो कहता है जब भी मैं बड़ी स्पीच करने जाया करता था इलेक्शन से पहले, तो मैं अपने आप को कहता था, वो गाना मेरे कानों में होता था, वो मुझे इंस्पिरेशन देता था कि जिंदगी में एक मौका आएगा, क्या तुम अपने आप को इक्विप कर रखा है कि तुम उससे फायदा उठाओगे, जिससे तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। कहता वो गाना मैं सुन के वो स्पीचेस को करता होता था कि लाइफ विल गिव यू वन अपॉर्चुनिटी, आर यू रेडी टू सीज दैट अपॉर्चुनिटी? तो वो जो हंगर है ना जिन लोगों में होगी, दे विल गो अप, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं जाया होने देता। ठीक है बच्चों? अच्छा सर, people who are not Yes, who are go from ahead. IT and business background, उनके लिए क्या skills होनी चाहिए before they apply at NetSol or any other multinational companies? आप आईटी के लिए पूछ रहे हैं, जिनकी एजुकेशन कंप्यूटर साइंस है? Yes sir. एक चीज देखो, आजकल डीप लर्निंग पे बड़ी बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रही है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग पे बात हो रही है। एवरीबडी वांट्स टू डू डीप लर्निंग, एमएल पे काम करना चाह रहे हैं। एक अपने आप से क्वेश्चन करना है आपने, सबने क्वेश्चन करना है जो कंप्यूटर साइंस में और जिनकी एस्पिरेशन ये है, एमएल, एआई, डीप लर्निंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग। क्या आपको मैथ अच्छा लगता है? अगर आपको मैथ अच्छा लगता है और आप एसएससी में और पहले ए लेवल्स में या मैट्रिक ओ लेवल्स में आपके मैथ में अच्छे नंबर आए थे, तो फिर यू आर द पर्सन फॉर डीप लर्निंग, आप एमएल के लिए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हर कोई इट्स द न्यू इन वर्ड, इट्स द न्यू, वो आईफोन की तरह एक नई महंगी चीज है और एक अच्छी चीज मैंने करनी है, उसमें आप फंसे रहेंगे। उससे बेहतर है आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग में आप जाएं, उधर भी उतना स्कोप है। सो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, जस्ट डूइंग थिंग्स फॉर द हेक ऑफ इट, कि दुनिया वो कर रही है या इट्स लुकिंग कूल, मत करना, क्योंकि वहां भी जगह नहीं बनेगी, वहां भी जो लोग बैठे हुए हैं। और एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, अगर आपकी मैथ अच्छी है और आपने बैचलर्स में मैथ
के अंदर आपने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं तो आप मशीन लर्निंग में काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ना भी आती हो आपको, अगर आपको सिर्फ मैथ आती है और आप मैथ के बहुत बड़े जीनियस हैं तो आप डीप लर्निंग एमएल पे काम कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री ले ली आपने और मैथ अच्छा नहीं लगता तो एमएल एआई आपके लिए नहीं है, एंड इट्स ओके, आपके लिए कुछ और है। कंप्यूटर साइंस का वास्ट फील्ड, उसके अंदर आर्किटेक्चर है, उसके अंदर ऊप्स है, उसके अंदर डीबी है, उसमें क्यूए है, क्यूए की ऑटोमेशन है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें स्क्रम मास्टर के रोल्स हैं, इतने रोल्स हैं उसके अंदर कि आप, और उसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। एंड यू कुड मेक योर ओन हाउस, आपके घर बन सकते हैं उससे, आप अपनी गाड़ी अपने पैसों से दे सकते हैं। और ये नहीं है कि आप सिर्फ एआई एमएल ही करके कुछ आगे जा सकते हैं। So first know what you want to do. आपके अंदर स्किल्स क्या है, बिकॉज जो इंटरव्यू कर रहा होगा, आप इतना अगर घुसे रहेंगे ना कि मैंने एआई एमएल पे काम करना है, जैसे आज से 5 साल पहले इट वाज जस्ट जिससे पूछो जी मैंने एंड्रॉइड पे काम करना है, एंड्रॉइड कहाँ गया। हम कहते थे उस वक्त बच्चों को कि आप ऊप्स पे काम करो, प्रोग्रामिंग स्किल्स पे काम करो, आपको अच्छा कोड लिखना आना चाहिए। क्या आपको अच्छा कोड लिखना आता है? नहीं, हमने एंड्रॉइड पे काम करना है। कहाँ गया वो? तो चीजें खत्म हो गई। जिस तरह आजकल चल रहा है मीन मंथ फुल स्टैक इंजीनियर डेवऑप्स, ये वक्त आज से हो सकता है दो साल बाद इन चीजों की नीड ही ना हो। नीड क्या होगी? क्या आप अच्छे प्रोग्रामर हैं? क्या आप प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकते हैं? तो दैट इज व्हाट इंटरव्यू में भी आपको जाना चाहिए कि मुझे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी जा रही है मैं उसको डिकोड करके मैं कोड पे कर सकता हूँ उसको। कितनी जल्दी और कितना अच्छा मैं छोटा कोड लिख सकता हूँ। और आपको अपनी चीजों, आपको सॉफ्ट एसडीएलसी के बारे में आइडिया होना चाहिए। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका जो है आपकी उंगलियों पे होना चाहिए। और आपने जब बात करनी है तो आपने ना तेज बोलना है ना आहिस्ता बोलना है। जो इंटरव्यू में जो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि हम एक्साइटेड होते हैं, हमारी आवाज कांप रही होती है, या हम बहुत तेज बोलना शुरू कर देते हैं या हम बहुत आहिस्ता बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने तेज नहीं बोलना, आवाज को लड़खड़ाना नहीं है वहां पर, कॉन्फिडेंस से बात करनी है वहां पर। और जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था उसको आपने जाके एक्सप्लेन करना है। और अगर आप लीड थे उस प्रोजेक्ट के तो आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत लोगों को शौक होता है कि जी मैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की टीम का लीड था। तो पूछते हैं जब आप लीड थे तो आपको टीम को हैंडल करने में क्या इशू आए थे। होता है ना, 4 लोग होते हैं, एक बंदा काम नहीं कर रहा होता, तो आपने कैसे उसको हैंडल किया। ये टिपिकल है क्वेश्चन के 4 लोगों की टीम होती है, 3 लोगों की टीम होती है, होता है ना आप लोगों के साथ, एक बंदा काम नहीं कर रहा। तो ये रियल वर्ल्ड में भी ऐसे होता है। रियल वर्ल्ड में भी ऐसे होता है कि जब आप किसी 5 लोगों के साथ काम कर रहे हैं, 4 बहुत मेहनती हैं, एक बस ऐसे ही होता है। तो ये चैलेंजेस रियल लाइफ में भी आते हैं। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब आप लीड थे उस प्रोजेक्ट के, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के, और 1-2 साहब जो काम नहीं कर रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे उनके साथ। तो वहां से हम आपको, व्हाट अबाउट गिविंग द इंटरव्यू इन उर्दू, बिल्कुल आप दें। बल्कि कहता हूँ कि आपको इंग्लिश में इंटरव्यू सिर्फ तब दें अगर सामने से कोई इंग्लिश में आपसे बात कर रहा है, और अगर उसको भी डिगेज कर लें। अगर उसकी भी इंग्लिश मेरे जैसी टूटी फूटी है तो आप भी फिर इंग्लिश उर्दू मिक्स में दें इंटरव्यू। बिकॉज कई दफा आप इंग्लिश में बोलना चाह रहे होते हैं, आप अपने आप को टोटल एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डोंट डू दैट। इट्स ऑल अबाउट बीइंग आर्टिकुलेट। एक वर्ड है आर्टिकुलेट, आपने सर्च करना है उसको। आर्टिकुलेट, आप कितने साफ तरीके से अपनी बात को कर सकते हैं। हाउ डू यू हैंडल नॉन वर्किंग पर्सन इन योर टीम? हाउ डू यू, दैट्स अ वेरी टफ वन। देखें, हम उसके अंदर ये कि आप उनके साथ पहली दफा आप उसको हाइड नहीं करेंगे, आप उससे दोस्ती जारी नहीं करेंगे। होता है ना कि यार चलो दोस्त है यार, चलो दोस्त का ख्याल कर लें। और मैं इस पे आपके साथ एक एग्जांपल भी करूंगा शेयर। मैं अमेरिका में था और मेरे साथ एक फ्रेंड था, अफ्रीकन अमेरिकन जिसको हम हबशी बोलते हैं। तो वो बेचारा शाम को काम करता था और डे टाइम पे वो स्कूल करता था। वो उसका होता था मेरे साथ। तो
एक कोर्स उसने लिया $400 का उसने। तो पहली असाइनमेंट आई ना, तो जिसने देनी थी असाइनमेंट, तो उसने बड़ा अपसेट था, वो जो उसका नाम था। मैंने कहा क्या हुआ जो, वाई आर यू अपसेट? कहता है यार मैंने असाइनमेंट नहीं की बिकॉज मैं रात काम कर रहा था। मैंने जिस तरह पाकिस्तान की आदत होती, मैंने उसके सामने रख दी असाइनमेंट। बड़ा ऑडली उसने देखा, कॉपी करके उसने दे दी असाइनमेंट, और उसका बी मेरी तरह B+ जो भी आना था वो आ गया उसका। नेक्स्ट वीक वही हुआ, असाइनमेंट आई जो ने नहीं की हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ? वही चीज हुई। मैंने कहा यार एक कॉपी मेरी कर ले। कहता नो 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 नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तेरे $400 तू इतना अर्न नहीं कर रहा जितनी तूने फीस दे दी है, उसमें आपको कुछ नहीं होता। मैंने लर्न करना था, मैंने मार्क्स नहीं भी लेने मैंने, और ये मेरे साथ खुद हुआ। आई स्वेयर, मेरे सामने हुआ वो, मैंने खुद अपने सामने होते देखा वो, कि उसने वो $400 का कोर्स ड्रॉप कर दिया, उसने फीस जाया कर दी। उसने कहा मैं फिर जब मैं अब पैसे सेव करके 4 महीने बाद फिर कर लूंगा, और आई विल मेक श्योर कि मैं टाइम भी दूं और इस असाइनमेंट को और इस कोर्स को सीखूं मैं। ना दैट इज द कॉन्सेप्ट। जब आपके फ्रेंड्स के साथ, जितना अच्छा भी फ्रेंड है, एक दोस्त को चांस दें उसको, कहें ठीक है मैं आपको लेके चल रही हूँ या चल रहा हूँ। इफ ही और शी डज इट अगेन, यू जस्ट हैव अ सीरियस टॉक विद दैट पर्सन कि अब तुमने थर्ड टाइम किया तो मैं तुम्हें वार्निंग अब टीचर को या मैं इन्फॉर्म करने लगी हूँ या करने लगा हूँ। और फिर उसको मार्क्स ना दें, बिकॉज लेकिन उसको ऑप्शन दें, उसको चांस दें, दो चांस दें उसको। बट इफ दे डोंट वांट टू चेंज, हे लेसन लाइफ में मिलना चाहिए है। सबक नहीं मिलेगा तो जिंदगी भर हम सहारे ढूंढते रहेंगे। आई थिंक 8 बज गए, फ्राइडे नाइट है, गो आउट, हैव फन। सर आई एम अ बिजनेस एडमिशन स्टूडेंट, सो दैट थिंग्स तेरा क्या आपका था क्वेश्चन था, मैं सॉरी नहीं पढ़ सका, जल्दी से आया। सर बिजनेस एडमिशन, सो दैट थिंग्स यार सीवी की अगेन, सीवी पे फोकस नहीं करना आपने बहुत ज्यादा। इट्स द स्किल सेट, द कॉन्फिडेंस, द हंगर, द व्हेन यू गो एंड टॉक टू अ पर्सन, द इंटरव्यूअर, आप में सब्सटेंस होना चाहिए। और सब्सटेंस कहाँ से आएगा? सब्सटेंस से जब आपने काम किया होगा तो सब्सटेंस आएगा ना। तो कोशिश ये करनी है कि जो वो 9 to 6 या 9 to 5 जॉब होगी, उसके अंदर आपने लर्न करना है जो भी काम दिया जा रहा है। चाहे वो आपको, मैं कह रहा हूँ ना कि लो एंड जॉब है कि सिर्फ फोटोकॉपीज ही करनी है, वहां से भी अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में फोटोकॉपीज करके आप ले आते हैं और आप उसको यूज करते हैं कि मैंने कितने टाइम में कितनी फोटोकॉपीज की और पेज जाया नहीं होने दिए, और जिस ऑर्डर में मुझे मिले उसी ऑर्डर में वापस मैंने ला के दिए, दैट स्पीक्स अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, कि आप कितने अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं आप। और ये चीजें लोग देख रहे होते हैं। अगर आप कहना कि यार क्या ये क्या मुझे दे दिए, तो इन पे कॉपीज करके ले आओ, या ये जाएं ये कागज किसी को दे आएं, या ये छोटा सा कैसे लिखे, नो, दे आर वॉचिंग यू, दे आर सीइंग हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर, और कितना आपने अच्छा उसको साफ तरीके से काम किया। उसके मार्क्स होते हैं, मिल रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो। एंड व्हेन यू डू दैट, यू आर एडिंग वैल्यू इन योरसेल्फ। व्हेन यू गो एंड टॉक टू समवन, आप में सब्सटेंस आ रहा होता है। So that's my answer to you, my friend Abdul Mateen. If I say the only thing I'm good at is improvising, what does it say about me? Improvising, क्या आपने कहा ना? That's too early to say. Maybe when you go in the real world, you see that you can do few other things too. So just explore. अभी मैं आपको कहूँगा explore about yourself. You're just too young. 10 साल आपको अगले लगने हैं to explore आपने करना क्या, आप में abilities क्या हैं। Thank you so much, sir, for your precious time. It was a very interactive और बहुत मजे का session था, and we really learned a lot. Thank you so much. Next time जब भी हो, you can always drop me. अब मुझे CV आप भेज सकते हैं, मैं CV fix करके भी भेज दूंगा आपको। तो कोई ऐसी बात नहीं है, because life में I feel if you help people, एक interesting बात आपको मैं कहूँ कि मेरा ना जो देहात का भी मेरा है बैकग्राउंड है। मैं लाहौर में भी रहता हूँ, बाहर भी रहता हूँ, और मैं यही एरिया से भी मैं हूँ।
तो जो मैं फर्क देखता हूँ ना दही एरियाज में और लाहौर के जो एरियाज हैं उनमें, या जो अर्बन शहर हैं उनमें, अर्बन शहर में अक्सर लोग एक दूसरे की कोशिश करके आगे लेके जा रहे होते हैं, और रूरल एरियाज में कोशिश होती है एक दूसरे की टांग खींच के उसको पीछे करना। तो ये पैरेलल सिस्टम पाकिस्तान में इस टाइम चल रहे हैं। जब देहात में जाते हैं लगता बड़ा अच्छा कि सिंपल लाइफ है, पर वहां एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, कंपटीशन है। शहर में मैंने देखा है कि लोग, पीपल टेंड टू हेल्प ईच अदर, एंड व्हेन यू हेल्प ईच अदर, आप एक दूसरे को हेल्प करते हैं तो आप खुद भी ऊपर जा रहे होते हैं, दूसरों को भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो जिंदगी अपनी, एक जिंदगी में नस्पुलैन आपका होना चाहिए कि मैंने लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करनी। ट्रस्ट मी, अल्लाह ताला आपके काम इतने आसान कर देंगे कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि आसानी कहाँ से आ रही है। वो जो एक हदीस है ना कि रास्ते से रोड़ा उठाओ, वो ये नहीं है कि रास्ते में रोड पे आप MM आलम रोड पे जा रहे हैं तो ईंट पड़ी है वो आप उठा दो। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे भी की गई कि किसी के रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्डल्स हैं, वो हटाओ। दीन भी आपका ही कहता है। तो आई वुड लव टू हेल्प यू एनीवेयर इफ यू वांट। CV तक मैं आपको, अगर आप मुझे लिख के भेजेंगे, मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। हो सकता है एक दिन में ना भेजूं, 2-3 दिन में भेजूं, लेकिन भेज दूंगा। ठीक है। सो हेल्प अदर्स, हंग्री, बी हंग्री फॉर न्यू थिंग्स। और मैं आपको बताऊं, आज से 10-15 साल बाद आप वापस देख रहे होंगे कि आप कहेंगे यार लाइफ में किसी ने कोई एडवाइस दी थी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। That'd be great, sir. Thank you so much for your Sir, help. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz.